صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں خطبہ مشہور بعد ایک آیت کریمہ تلاوت شرف حاصل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا عدم سیدھا سادہ مقصد یہ ہے، عدم سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے کون آیا؟ میرا نبی۔ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے میرا نبی آیا۔ میرا نبی جب مکہ کی سرزمین پر تشریف لانے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ مکہ کی سرحد پر جاؤ، مکہ کی سرزمین پر جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رزاق، اکیلے جاؤں تنہا جاؤں کیا کرنے جاؤں؟ تو میرا مالک فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اے جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ مکہ شریف میں۔ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ جبرائیل مکہ شریف کی سرزمین پر، مکہ کی دھرتی پر، مکہ کی سرزمین پر 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ۔ اے مولا 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤں، اس کے ساتھ خالی ہاتھ جاؤں یا کچھ لے کر کے جاؤں؟ تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل خالی ہاتھ نہیں بلکہ 3 جھنڈے لے کر کے جاؤ، ایک مغرب میں لگا دو، ایک مشرق میں لگا دو اور ایک خانہ کعبہ کی سرحد پر لگا دو، ایک خانہ کعبہ کی سرحد پر لگا دو۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج کوئی ملک ہوتا ہے تو اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، کسی کا ہندوستان کا جھنڈا ہے تو ہندوستان کا جھنڈا ہے، بنگلہ دیش کا جھنڈا ہے، حتیٰ کہ تمام طرح کے دیش جو ہے 208 کنٹری ہیں، تمام طرح کے دیش ہیں اور تمام طرح کے جھنڈے ہیں۔ قسم با خدا کی جس دیشوں کی سرحد ہوتی ہے، سرحد پر ایک جھنڈا متحد ہو جاتا ہے، یعنی کہ متفق ہو جاتا ہے۔ اتنی دور تک انڈیا کا ہے، اتنی دور تک پاکستان کا ہے، اتنی دور تک انگلستان کا ہے، اتنی دور تک ترکستان کا ہے، اتنی دور تک حتیٰ کہ تمام طرح کے ممالک کے حقوق تک طے ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈا لگوایا، مشرق پر لگوایا، مغرب پر لگوایا، یہ بتا دیا یہ لوگوں سنو حکومت کسی کی ہوگی، بادشاہیت کسی کی ہوگی، لیکن چلے گا تو میرے مصطفیٰ کی چلے گی، چلے گی تو میرے محبوب کی چلے گی، چلے گی تو میرے محبوب کی چلے گی۔ مالک پروردگار کہتا ہے مشرق میں نے اس لیے لگوا دیا، مغرب میں نے اس لیے لگوا دیا کہ ساری دنیا کا کوئی اگر مالک ہے تو اس کا رب ہے، اگر کوئی پالنہار ہے تو رب ہے، اگر کوئی اس کو چلانے والا ہے تو اس کا رب ہے، اگر اس کو کوئی دیکھنے والا ہے تو اس کا محبوب علیہ السلام ہے، اس کا محبوب علیہ السلام ہے، اس کا محبوب علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت بنا کر کے بھیجا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمت میرے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 یا 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی جو نعمت ہے ان نعمتوں میں خوشی مناؤ، ان نعمتوں سے خوشی کرو، ان نعمتوں میں خوش ہو جاؤ اور اس پر کے بعد اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے، اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے۔ سورہ یونس بتا رہا ہوں میں، جب سب سے بڑی نعمت محدثین، مفسرین، محققین، چاروں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، حتیٰ کہ غیروں نے بھی نہیں لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ نعمت سے مراد میرے مصطفیٰ ہے، نعمت سے مراد میرے مصطفیٰ ہے، اور سب سے بڑی نعمت دنیا کی اگر کوئی چیز ہے رب کی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب میں نعمتوں کا چرچا کرنا گنانا شروع کروں گا تو گناتا رہوں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ تمہیں پانی کی نعمت دیا، اللہ تمہیں ہاتھ کا نعمت دیا، اللہ نے تمہیں کانوں کا نعمت دیا، اللہ نے تمہیں ہاتھوں کا نعمت دیا، اللہ نے تمہیں باپوں سے باپ کا نعمت دیا،
اللہ نے बेटों का नेमत दिया, किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे? अल्लाह तुम्हें खाने का दे रहा है, अल्लाह तुम्हें सांस लेने का दे रहा है, अल्लाह तुम्हें हर चीज दे रहा है, तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाहु अकबर कबीरा, बताओ तो सही। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से नवाजा है, हमें नेमतों से नवाजा है, और इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हमें अता फरमा दिया है, अपने हबीब को हमें अता फरमा दिया है। नियामत के जरिए से, नियामत की निशानियों के जरिए से हमें अपने हबीब को अता फरमा दिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने महबूब को दिया करते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ अपनी ज़ात पर, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा की ज़ात पर, कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मती बन करके हम लोग आए हैं। मेरे जीस दोस्त और भाइयों, कुर्बान जाओ, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मती होने का मुझे शर्फ मिला है, वरना तमाम सारे नबियों का ये ख्याल था, सारे नबियों की दुआ थी कि मेरे रब मेरे अपने महबूब की उम्मती मुझे बना लेना, अपने महबूब की उम्मती मुझे बना लेना। ज़करिया की भी ख्वाहिश, यहया की भी ख्वाहिश, मूसा की भी ख्वाहिश, ईसा की भी ख्वाहिश, हर सारे नबियों की ख्वाहिश थी, मौला मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा करना, अपने महबूब की उम्मत में पैदा करना, अपने महबूब की उम्मत में पैदा करना। अल्लाह बताओ तो सही, अल्लाह ने बगैर दुआ किए हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, और पता ये चला कि हम सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की उम्मत में तुम्हें पैदा किया है और अता किया है, और तुम बुरे कामों से रोकने वाले हो, भलाई की दावत देने वाले हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मेरे जीस दोस्त भाइयों, ये माह रबीउन नूर, और हमें और आपको चाहिए सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मक्का की सरजमी पर तशरीफ़ लाएगा, तो मक्का के सरजमी का मामला कुछ अलग हो गया था, मामला ही कुछ अलग हो गया था। बताया जा रहा है, लिखा गया है कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त मक्का की सरहद रोशन हो गई थी, मक्का की सरहद रोशन हो गई थी। मक्का की सरहद ही नहीं बल्कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैं मक्का की सरजमीन से मुल्क शाम को देख रही थी, मुल्क शाम को देख रही थी, मुल्क शाम को देख रही थी। अब मैं आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, ये आमिना ये मामला क्या है? तो आमिना तुरंत करके जवाब देती है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, ऐसा है सुनो, ये जो मैं मुल्क मक्का की सरजमीन पर मुल्क शाम देख रही हूँ ना, ये कोई आमिना की खासियत नहीं है, ये कोई आमिना की जात नहीं है, बल्कि ये मेरे मुस्तफ़ा मेरे बेटे की आमद से पहले ये मोजिज़ाते मुस्तफ़ा है, ये मोजिज़ाते मुस्तफ़ा है कि मोजिज़ाते मुस्तफ़ा की आमद पर इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैं मक्का की सरजमीन से बैठ करके मैं शाम के मवाली को देख रही थी, शाम के महलात को देख रही थी, शाम के मवाली को देख रही थी। बताओ तो सही, जब मुस्तफ़ा की आमद हो तो आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुल्क शाम को देख ले, मक्का की सरजमीन पर इतनी ब्राइट हो गई थी, इतनी रोशनी हो गई थी। जब मेरे पास हमारे पास रुपया हमारे पास पैसा हमारे पास है, इंतजामात हमारे पास है, जिनका सदका हम खाते हैं, जिनका सदका हम पीते हैं, जिनके सदक़े में सांस मिली है, जिनके सदक़े में रिज़्क़ मिला है, जिनके सदक़े में जीना मिला है, जिनके सदक़े में चलना मिला है, जिनके सदक़े में हमें उठना बैठने का तरीका मिला है, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया है, जिनके सदक़े में रब ने जन्नत बनाई है, जिनके सदक़े में रब ने मूसा को बनाया है, ईसा को बनाया है, यहया को बनाया है, ज़करिया को बनाया है, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कह दो, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों कायनात को बनाया है, उसकी आमद पर अगर हमारी जेब से 1000 या 500 या 200 रुपया लग जा रहा है तो किसी को तकलीफ क्या होती है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों लीडे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे जीस दोस्तों भाइयों, मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, शैतान 3 मरतबा रोया है,
शैतान 3 मरतबा रोया है। एक मरतबा तो उस टाइम रोया है जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई थी, या जब उसे जन्नत से निकाला गया था, शायद सूरह फातिहा जब नाजिल हुई थी, उसके बाद जब मेरे मुस्तफ़ा इस कायनात में तशरीफ़ ला रहे थे, इस कायनात में तशरीफ़ ला रहे थे, उस टाइम रोया था। आज उनकी औलादें रो रही इनकी आमद पर, उनकी औलादें रो रही उनकी आमद पर रोने की जरूरत नहीं है। हमें जिन नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, नबी पर हमारा ईमान है ना, नबी पर हमारा ईमान, नबी को माने। देखिए जो जुलूस मोहम्मदी है, अब जुलूस मोहम्मदी पहले सुने, उसके बाद टाइम भी हो गया। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत, जश्न विलादत, यानी कि मुस्तफ़ा की विलादत को मानना फ़र्ज़ है, विलादत को मानना फ़र्ज़ है, मिलाद को मानना फ़र्ज़ है। मिलाद का मतलब होता है पैदाइश, मिलाद का मानना फ़र्ज़ है, मनाना सुन्नत है। और जिस तरीके से आज हम मनाते हैं, ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। जो करता है तो करता है, नहीं करता तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई शिर्क बिदअत करता है तब उस पर मामलात होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम का हमारा अकीदा है मानना फ़र्ज़ है, मानना फ़र्ज़ है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, नबियों पर ईमान रखना, खुदा पर ईमान रखना, किताब पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना, और क़यामत पर ईमान रखना, मैं के जिंदा होने पर ईमान रखना। इन चीज़ों पर ईमान रखना ये इस्लाम के अरकान है, हमें अरकान में अमल करना है। अल्लाह के नबियों पर ईमान रखना ये ईमान है, ये फ़र्ज़ है। तो हमारा ये फ़र्ज़ से अकीदा हट जाएगा। और जब हम मिलाद मनाते हैं ना, किसी को बताते हैं कि हम मानते भी ना, या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आए नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी कि सरकार आलम इरशाद फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों को ये पता ना चल जाए कि नबियों को, नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुन्नी को खुदा माना बैठे हैं। नहीं नहीं, मैं मिलाद मना करके ये बता दे रहा हूँ, ये लोगों मैं मुस्तफ़ा को खुदा नहीं बनाया हूँ, लेकिन हाँ मुस्तफ़ा को खुदा से जुदा नहीं किया हूँ, मुस्तफ़ा को खुदा से जुदा नहीं किया हूँ। मेरे अजीज दोस्त भाइयों, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मिलादत की शहादत हमें बेहतरीन अंदाज में मनाना है। जिस तरीके से हमारा आका अलैहिस्सलाम, देखिए फर्ज इस तरीके से उनको मानना फ़र्ज़ है और मनाना सुन्नत है। मनाना मतलब कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर रोज़ा रखें, रोज़ा रखें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, कसरत से नफ़ाइल पढ़ें, कसरत से नमाज अदा करें, ये सुन्नत हो जाएगी। इसलिए कि मेरे आका ने खुद रखा है रोज़ा, मेरे आका ने खुद रोज़ा रखा है, तो हमें रोज़ा रखने की सुन्नत है। उसमें जब हम लोग निकालते हैं जुलूस या जुलूस लेकर के निकालते हैं, उस जुलूस से मुहम्मदी कहलाते हैं, उस तरीके से निकालना मुस्तहब है। निकालता है तो कोई सवाब है, नहीं निकालता तो कोई गुनाह नहीं है। तो हमें अदब के दायरे में आकर हम इस तरीके से अदब की तरफ करेंगे तो मुस्तहब पर अमल, जो मुस्तहब होता है, एक बिदअत हसना और बिदअत सहिया, 2 बिदअतें हैं, बिदअत हसना और बिदअत सहिया। बिदअत सहिया वो है जिसको करने से गुनाह मिलता है, और जो बिदअत हसना वो है यानी कि जो जिसने आज़ाद कराया उसको भी सवाब, और जिसने कर रहा, जो कर रहा है, जिसके जरिए से हो रहा है, उसको भी सवाब मिलता हुआ नजर आता है। उसी को कहते हैं मुस्तहब अमल।